Okay, so after understanding the Clausius inequality, let's talk about few more terms here. So let's suppose if you are saying there is ds, that is change in entropy, it's simply del q by t here. Okay, if you are defining this one. So in this case, if I'm saying if the heat transfer is simply zero, अगर बोलता हूँ इसमें heat transfer मेरे पास में क्या है zero है. In that case, I think you can say the process is adiabatic. Okay, so in this case, we are simply saying the process is reversible adiabatic. I'm saying the process is reversible and adiabatic process. Okay, so in that case, I think we can directly say that is for reversible adiabatic process, you can say the change in entropy is zero, or you can say the S will be constant. So we are defining here the entropy remains constant, and for this we can use a word isentropic process. Okay, so means when you are saying the isentropic process, so in that case you can also say that is a reversible adiabatic process will be an isentropic process. Okay, ये टर्म आपको याद रखनी है. So in this case we are saying a reversible adiabatic process will be an isentropic process. ये आपके पास में एक isentropic process होने वाली है. So it means कोई आपसे पूछे that is it is necessary that is an isentropic process will always be need to reversible adiabatic. कैसा है कि जब भी आप isentropic process बोले मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, उस केस में हमेशा आपके पास में प्रोसेस को रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होने की नीड है. सो नो, एक्चुअल द आंसर इज नो. क्यों आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर आपके पास में दैट इज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विल ऑलवेज बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ओके, सो इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वी आर सिंपली डिफाइनिंग व्हाट द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट हियर. सो इफ वी ड्रॉ द कार्नोट साइकिल, ओके, द कार्नोट साइकिल. ओके, सो जब ड्रॉ कीजिए आपके पास में, वी ड्रॉ द डायग्राम ऑन द पीवी डायग्राम. ओके, प्रेसेस वर्सेस वॉल्यूम पे हमने ड्रॉ किया था. इन दैट केस वी टेक वन आइसोथर्मल फ्रॉम 1 to 2, देन 2 to 3 we take the adiabatic process, then 3 to 1 again we take the 3 to 4 we take the isothermal, and then there is a adiabatic process here. So in this case there are two adiabatic process, or obviously in this case we are saying Carnot cycle, so reversible adiabatic process. So in this case we are saying that is there are two, this one and this one is reversible isothermal process. Okay, and there are two, this one and this one are reversible adiabatic process. Okay, ये हम पहले बात कर चुके हैं आपके पास. Now let's draw the Carnot cycle on the TS diagram. Okay, TS diagram में हम बात करेंगे. So this is a TS diagram. So in this case I told you that is here we will supply the heat Q1. We'll get some work out here that I'm saying this is a expansion work. Heat is being rejected here, Q2. In this case, let's suppose we are providing some compression work here. We are providing some compression work here. So ये हमारे पास में कुछ साइकिल थे. Now I want to draw the cycle on the TS diagram. मुझे TS साइकिल, आपका TS diagram पे साइकिल ड्रॉ करनी है. So obviously first process, that is 1 to 2 process is reversible isothermal process, means the temperature remains constant. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास में temperature क्या होने वाला है? Constant होने वाला है. So in this case, I will simply draw a constant temperature line from 1 to 2. Okay, 1 to 2, I am drawing a constant temperature line, and in this case, this is our reversible isothermal process, and there will be heat addition process, that is Q1. Okay, now as this process 2 to 3 is reversible adiabatic process, so I told you a reversible adiabatic process will be isentropic process, means entropy remains constant. So उस केस में क्या होगी? Entropy constant रहेगी. So we will draw a process 2 to 3 like this one. You can clearly see in this case the entropy is not going to change, it will remain same here. ठीक है, entropy की जो वैल्यू क्या है हमारे पास में सेम है, it's not going to change here. So 2 to 3 is simply what? This is our expansion process and this is also our
isentropic process. So in this case, we are receiving some expansion work. Again, 3 to 4 is a reversible isothermal process. 3 to 4 क्या हमारे पास में reversible isothermal process. So we can draw it like this one, constant temperature here. So 3 to 4 here. Okay, and obviously this is a heat rejection process here. यहाँ पे heat reject हो रही है Q2. Okay. Now 4 to 1 is reversible adiabatic process. So entropy remains constant here. So we will draw like this one. हम कुछ ऐसे draw कर देंगे इसको. Okay, that here and here. So this is our reversible adiabatic process, that is isentropic process, and there is a compression work has to provide this one. Okay. So a Carnot cycle will look like this one on TS diagram and this one on the PV diagram. Okay, तो कुछ इस तरह से आपके पास में साइकिल आपको दिखाई देने वाली है. Now I told you that is the area under the curve in case of TS diagram will provide the heat transfer. Okay, कि जो आपके पास में एरिया होगा under the curve in case of TS diagram will provide the heat transfer. वो हमें क्या देने वाला है? Heat transfer, because we know this one. Okay, and by knowing this one you can say that is delta Q is simply equal to TdS. Okay, so in this case this is providing the heat transfer here. So means the area under the curve कि कितनी heat add हुई आपके पास में Q1. Okay, so if you want to calculate the Q1, so in that case the Q1 will be the area under this line from 1 to 2. So this much area you will cover up for the Q1. इतना area आपके पास में cover up होगा, because this is the area for the Q1. Okay, so we have to calculate this area here. ठीक है, ये area में निकालना होगा. So in this case, let's suppose if I am saying this temperature, higher temperature is that I am saying this is T1. Okay, T1, and let's suppose I am saying this lower temperature is T2. Okay, या फिर आप चाहो तो जो हमने पहले बात की थी higher temperature and lower temperature की टर्म में लिखते हो ताकि हम confuse ना हो. Okay, this is the case here. So I want to calculate area of this part here. Okay, so ये मुझे area निकालना है. So these are the points on the entropy line here. So I want to calculate the Q1. Q1 is the area under line of process 1 to 2. इतना एरिया हमें कवर अप करना है. ओके, सो आई थिंक दिस इज रेक्टेंगुलर. ठीक है, आपके इसमें रेक्टेंगल हमारे लिए. सो इन दिस केस द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज TH. ओके, कितनी हाइट हमारे पास में? TH इज द हाइट. TH इज द हाइट. Okay, and what is the width here? अगर आपको width calculate करनी है, so I think this is the S2. This point is S2. This point is S1 here. So I think S2 minus S1 is the width here. Okay, so you can say that is in this case you can say this is TH into S2 minus S1. Okay, that will become our heat addition in the process 1 to 2. Okay, heat reject कितनी हुई? So obviously for the heat rejection we will calculate this area. Okay, ये एरिया हम निकालेंगे आपके पास में. So in this case we will get, or we want to calculate this area. इतना एरिया हमें निकालना. Okay, so Q2. So Q2 is the area under line of process 3 to 4. Okay, so I think for this rectangle the height is TL. Height कितनी है? TL है. This one you can mark this point is also S3, because you can say that is S2 and S3 are same. Similarly here there is S1 and S4 are equal. So this point is also S4 here. Okay, so width is S3 minus S4 you can say. So in this case you can say this will be equal to, so Q2 will be equals to TL into S3 minus S4. Okay, obviously the value of S3 is more than the S4. Obviously I know the Q2 is the heat rejection. ये हमें पता है आपके पास में, but in this case we are simply taking the magnitude. So magnitude लेने की वजह से मैंने क्या कर दिया इसको? S3 minus S4, because when you write the S4 minus S3 you will get the automatic negative sign. So there is no problem in this case. Okay, so we'll get this Q1 Q2 here like this. तो Q1 Q2 के लिए हमारे पास में आ गई है. Now I told you that is this area will provide the work done. ये एरिया में क्या देगा? वर्क देगा PV डायग्राम में. Similar case here. In this case, if you want to calculate the work done here, so work done is simply what? Work done is equals to this area. ये area में मिलने वाला. So area कितना होगा? So I think this whole area that is actually the Q1 minus this area actually that is the Q2. So you'll get this area here. Okay. So if you want to find out the net work, so W net. So this is simply Q1 minus Q2.
ये हमने पहले ही बात की थी जब हम साइकिल की बात कर रहे थे। ओके, जब हमने आपके पास में एक साइकिल की बात की थी, THQ1, our engine here, that is reversible engine, we are getting W net here, this is Q2 and this is our TL here. Okay, so this is reversible engine हमने बात करी, Carnot engine की, so in this case we will simply write this W net is Q1 minus Q2, लिख सकते हैं आप कैसे? So by using this equation I can say that is this is TH S2 minus S1 minus TL S3 minus S4. But I think we know that is S2 and S3 are same and S1 and S4 are same. Okay, दोनों same आपके पास में. So I can take this term common here. So मैं common ले सकता हूँ. So I can write this as S2 minus S1. S2 minus S1. This is TH minus TL. Because we know that is S2 is equals to S3 and S1 equals to S4. Okay. So we can say this one. So this will be our net work here. यहाँ बाद में क्या जाएगा? Work हो जाएगा. Okay. So now, if you want to find out the efficiency, अगर आपको efficiency निकालनी है, so in this case you can find out the efficiency. Okay. So I'm saying efficiency. So efficiency we know that is W net divided by Q1. That is output by input. Okay. And if you want to find out the Carnot efficiency in this case, जो Carnot efficiency हमारे पास में, so N Carnot. So W net is, I think you can write this is S2 minus S1. Sorry, S2 minus S1 into TH minus TL whole term divided by. So Q1 is that one. That is TH S2 minus S1. Okay. So मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप clear रहे. So eta Carnot or maximum efficiency. So you can again say here S2 minus S1. S2 minus S1 going to cancel out here. So this become TH minus TL divided by TH. So reaching our conclusion जो हम पहले भी ड्राइव किया था, that is TL by TH. So you will get this term. Okay. तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगी. ठीक है. So यहाँ से आप चाहो तो कार्नोट की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अगर आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, यू कैन फाइंड आउट दिस टर्म हियर. ठीक है, आप इस टर्म में निकाल सकते हैं, एंट्रोपी के टर्म में भी. ठीक है. अगर वो समहाउ आपको यहाँ पे कुछ एरिया देखे, दैट इज द साइकिल, दिस साइकिल एरिया अंडर this cycle here is this much, then you can simply find out this area and by dividing the whole area you can also find out the efficiency here. So this is how we are representing the Carnot cycle on the PV diagram and Carnot cycle on the TH diagram. Okay, काफी बार पूछा जाता है आपके पास में. ठीक है. So कई बार आपको simply area दिया हुआ, circle दिया हुआ, पूछेंगे कि आपके पास में what will be the work done in that case. So simply in that case simply find out the area of the circle, you will get your work done. ठीक है, आपको आपके पास में work done मिल जाएगा. So बड़े simple equations है जो आपके पास इस point पे पूछे जाते हैं. So I think Carnot cycle on TH diagram is clear. आपको एक clear होना चाहिए आपके पास में. Okay. Okay. Now we will understand a crucial concept about the entropy here. Okay. So let me draw a cycle here. एक cycle draw करते हैं आपके पास में. So obviously I am using this cycle in case of TH diagram. ठीक है. यहाँ पर आप मान सकते हैं simply this is temperature. Let's suppose there is a process happening from point A to B. Okay. So this is a state A. This is the state B. दो state है. Let's suppose there is a process like this one. Okay, I'm saying this process is reversible. Okay, and let's suppose this process, this is also from A to B. This is irreversible process. Okay, I'm saying this is irreversible. Irreversible. Okay, the two processes are happening here. Okay, from the same state A and B, one is reversible, another one is irreversible. Okay, let's suppose there is some temperature line here, and also this is a process here. ये भी एक process हमारे पास में, and obviously this is what? This is TH diagram. Okay, I'm drawing this is TH diagram. So this is isothermal process here. एक isothermal process हमारे पास में. Now let if I'm saying or not exactly taking this one. Okay, अगर आप इसमें confused में हैं कि आपके पास में diagram ये reversible आपके पास में isothermal हो गया नहीं हुई, let's simply say that we are not taking any value here. Now, if I divide, okay, in this one in so many smaller cycles, okay, आप देखिएगा इसको कैसे देखते हैं. एक रफली साइकिल हम लेके चल रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे हम देख रहे हैं इसको. So here I defined this one, or I divided this one, this part
in the number of cycles here. Okay, so actually in this case these processes, ये जो हमने process यहाँ पे mark किए, this one, this one, this one, this one, ये सब क्या हमारे पास में, these are the reversible adiabatic process. ये हमारे पास में क्या है, reversible adiabatic process है. Okay, so in this case that I'm saying, I'm considering this cycle from here to here, then here, then here, and then here. Okay, we are considering a smaller cycle here. Okay, एक smaller cycle हमने consider किया. So let's suppose in this case I'm saying that is, अगर हम mark कर लें, that is average temperature here, average temperature in between this cycle from this process that I'm saying, this temperature is T here. Okay, हम बात कर लें आपके पास में, that this temperature is T here, this temperature is T here, and here a heat amount is del Q. Okay, so this almost an average temperature T, an amount of heat added here is del Q. Now, this is a reversible adiabatic process. Then let's suppose here I'm saying this temperature is T2. Let's suppose I'm saying, and here the heat rejected is del Q2. Okay, यहाँ पे जितनी heat reject हुई वो क्या हुई, del Q2. So obviously in this case the T2 is smaller than T. जो T2 की वैल्यू आपके सामने क्या है, वो T से smaller है. So it consisting a cycle. इसी तरीके से एक साइकिल ये भी हो सकती है अपने आप में, एक साइकिल ये भी हो सकती है, एक साइकिल ये भी हो सकती है, एक साइकिल ये भी हो सकती है. So बहुत सारी साइकिल हो सकती है. So actually in this case we are considering very small cycle. Okay, इसलिए मैंने इसकी एवरेज वैल्यू T ले ली यहाँ पे. Okay, now अब ऑब्वियसली देखिए, अब हमारे पास में जो साइकिल है जिसकी वैल्यू हमने मार्क की यहाँ पे, सो फॉर दिस वन प्रोसेस ये भी हो सकती है और प्रोसेस ये भी हो सकती है, दोनों प्रोसेस आपके पास में, बिकॉज वी आर टेकिंग द सेम प्रोसेस हियर, दोनों प्रोसेस आपके पास में. सो फर्स्ट let if I want to efficiency, अगर मैं I want to write the efficiency of this one, so I will simply write that is efficiency will be 1 minus, so the lower heat is del Q2 divided by del Q here. That is our efficiency for this case. Okay. Now, obviously I'm writing and I'm not writing this term in case of temperature. इसमें इसको temperature के term में लिख रहा है. It means I'm simply taking this is irreversible. Okay. So अगर मैं आपके पास में irreversible चूज करूं और मैं सेम साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस चूज करूं, so obviously if I am considering this cycle, अगर मैं इस साइकिल को कंसीडर कर लूं, so then the whole cycle is reversible cycle. Okay, and if I am considering this path here or this process here, then this cycle will be a reversible cycle. Okay, so we know that is the efficiency of irreversible cycle will be smaller than the efficiency of रिवर्सिबल साइकिल. ओके, ये तो होने वाला आपके पास में डेफिनेटली होगा. और मैक्सिमम केस में क्या हो सकती है, दैट इज मैक्सिमम केस दिस इज पॉसिबल, दैट इज द एफिशिएंसी कैन बी इन मैक्सिमम केस विल बी इक्वल टू दिस वन हाई क्लास, अगर मान लें आपके किसी तरीके से, बट वी नो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू द रिवर्सिबल साइकिल, बिकॉज वी नो दैट इज रिवर्सिबल साइकिल विल ऑलवेज प्रोवाइड द मैक्सिमम एफिशिएंसी. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस टर्म अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको लिखता हूं 1 minus del Q2 by del Q. So obviously I'm writing this term as irreversible, and then I'm saying 1 minus del Q2 by del Q. This is for reversible. Okay, same term मैंने यूज किया वहीं पे. Okay, so I can cancel out the one both side, but both side हमारे पास नेगेटिव साइन है. So जैसे मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा, obviously inequality का साइन वो चेंज होगा. So I will write this one, this is by del Q. Sign is gonna change because we are removing the minus sign here. This is for reversible here. Okay. Now, if I flip this one, कि मैं del Q2 को नीचे ले आऊं, del Q को ऊपर ले जाऊं, again the sign is going to be reverse. So मैंने क्या कर दिया आपके पास में, इसको flip कर लिया है और मैंने साइन को रिवर्स कर दिया. Okay. So I'm writing del Q by del Q2 reversible. Okay. अब कुछ मैंने ये लिख लिया. Now, I think when we are writing that is del Q divided by del Q2 for reversible. So I think we know for reversible the heat ratio must be maintained will be equals to the temperature ratio. Okay, the heat ratio किसकी इक्वल होगा आपके इसमें, temperature ratio इक्वल होगा. So I think that del Q is the heat transfer at the temperature T. Del Q2 is the heat transfer at the temperature T2. So for the reversible I can write this one, but for the irreversible I can't write this one. Okay, so by using this term, इस term को use करते हुए, I will write that is, अब मैं simply इस term को replace कर रहा हूं इससे, so I will write del Q divided by del Q2 is less than equals to T divided by
T2. ओके, इस तरह से आपके पास में टर्म लिख दिया मैंने. ओके, अब मैं थोड़ा सा आपका T को यहाँ लेके आ रहा हूँ, del Q2 को उधर लेके जा रहा हूँ. सो आई कैन राइट दिस इज बाई T. ओके, अब यहां पे हमारे पास में कंक्लूजन. ध्यान नोटिस कीजिए, आई थिंक इस प्रोसेस को छोड़ के साइकिल में जो भी प्रोसेस है वो क्या है आपके रिवर्सिबल है. दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल. Means if the process we are drawing in the dark line, the process will be reversible process. Okay, so this process is also reversible. So I think this term is for reversible and this term is for irreversible. Okay, ये टर्म किसके लिए आपके पास में है? रिवर्सिबल के लिए. और ये टर्म किसके लिए आपके पास में? इरिवर्सिबल के लिए. Now, so I think I can write for reversible, you can say del Q2 by T2. It's simply equals to ds, change in entropy. क्या पता आपके पास में? Okay, so I can write this term here. So from here I will write that is del Q by T less than equals to ds. Or actually हम लिखते हैं ds must be greater than del Q by T, must be greater than equals to this one. Okay, तो यहां पे greater than और equals to दो साइन है. It means we can use this one. इसको हम यूज कर सकते हैं आपके इसमें क्या? वी कैन यूज दिस वन फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए आप एक टर्म लिखते हो. मीन्स इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस वन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, देन वी नो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी दिस वन. मीन्स यू कैन से फर्स्ट टर्म फॉर reversible process, you can say ds will be exactly equals to del Q by T. ये इक्वल होगी टर्म. ओके, there is a change in entropy. Change in entropy will be simply equals to the heat transfer over the temperature, will be exactly equal. सेम होंगे आपके पास में. For irreversible ds will be greater than del Q by T. Okay, ds will be greater than del Q by T. Okay, अगर प्रोसेस आपके पास में इरिवर्सिबल है, उस केस में एंट्रोपी का जो चेंज होगा वो इस टर्म से ज्यादा होगा. ठीक है, अब यहीं पे आपके पास में एक टर्म होती है, एक टर्म आती है. सो एक तो की पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा. दिस इज फॉर द एनी प्रोसेस. और दो ये की पॉइंट है, इनका भी ध्यान रखना है. ओके, इन दोनों का ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है आपके पास में. फॉर एनी प्रोसेस इज दिस वन, फॉर रिवर्सिबल इज दिस वन, फॉर इरिवर्सिबल इज दिस वन. ओके, सो इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल देन व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट टर्म? ऐसा क्यों है? दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी विल बी डिफरेंट और ग्रेटर देन द हीट ट्रांसफर ओवर द टेम्परेचर. ओके, सो यहां पे मैं आपके पास में दो टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा आपके पास है. मैंने आपको बताया दैट इज ds जो मैंने आपको बताया, मैंने सिंपली बताया दिस इज द एंट्रोपी चेंज. ओके, ये एंट्रोपी चेंज है. बट व्हाई देयर इज एंट्रोपी चेंजिंग? एंट्रोपी चेंज हो क्यों रही है? ओके, नाउ तो एंट्रोपी चेंज हो क्यों रही है और इसको ऐसे स्टार्ट करें. व्हाट इज एक्चुअली द एंट्रोपी इज? एंट्रोपी है क्या? क्योंकि अभी तक हमने जो भी कुछ देखा, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा, अभी तक हमने जो भी कुछ देखा वो मैथमेटिकली देखा है. बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द एंट्रोपी. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द एंट्रोपी? एंट्रोपी है क्या हमारे पास में? ओके, सो आई एम डिफाइनिंग एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. सबसे कॉमन डेफिनेशन एंट्रोपी की दी जाती है और मैक्सिमम टाइम आपके पास में लोगों को समझते नहीं. मींस बोलते देते हैं दैट इज द एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस. बट व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस टर्म? इस टर्म का मतलब क्या है? ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस व्हाट? रैंडमनेस किस चीज की? लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग दैट इज, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, दिस इज 1 kg एयर हियर एट लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यहाँ पे 1 kg एयर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो ऑब्वियसली दे आर एयर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आपके पास.
Okay, now I'm saying there is 5 kg air at 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब मैं किसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, बस अब मैं आपके पास में जो फिलॉसफी है उसको समझने की बात कर रहा हूं. So here is 1 kg air at the 25 degree centigrade, here the 5 kg air at the 50 degree centigrade. In which case the entropy is more? ठीक है, अब प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कैसे? Means if you say there is entropy simply due to the temperature. If here the temperature is more, in that case the entropy is more here. Obviously you can say. But what about the mass? ठीक है, mass के बारे में क्या? If this is possible, that is if more is the mass, the more is the randomness. अगर ज्यादा mass है तो पार्टिकल ज्यादा रैंडम होंगे. This is possible? क्या आपके पास में ऐसा हो सकता है? Okay, it means if we increase the mass, in that case the randomness is also increasing. ठीक है, कि पार्टिकल ज्यादा रैंडम हो रहे हैं आपके पास में. ठीक है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है आपके पास में? ठीक है, और when we are talking about the degree of randomness, so are we talking about the kinetic energy of the particle? क्या हम पार्टिकल की kinetic energy की बात करें? Means if more the kinetic energy, then more the entropy. क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, क्या ऐसा पॉसिबल इन इस केस में क्या हम ये बात करते हैं? और इफ आई एम सेइंग लेट्स सपोज द ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डेड. ओके, लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग सम मटेरियल इज एट द 0 केल्विन टेम्परेचर. कोई आपके पास में मटेरियल जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास में है. सो इज दिस पॉसिबल दैट इज एट दैट टेम्परेचर एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नल, इन दैट केस द एंट्रोपी इज 0 और एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज 0. क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या वहां पे आपके पास में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन है या नहीं है आपके पास में? क्या ये मैटर करता है? एंट्रोपी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है. बट फॉर द सेक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन से द एंट्रोपी ट्रांसफर कैन बी डन ओनली बाय 2 मेथड्स. एंट्रोपी ट्रांसफर कैन बी डन बाय 2 मेथड्स. बड़ा की पॉइंट है आपके पास में, बहुत ध्यान से आपके पास लिखिएगा, इसको समझिएगा. एंट्रोपी ट्रांसफर कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, not either. One, heat transfer. Second, क्या होना चाहिए? Mass transfer. Mass transfer. Okay. If somebody is saying by work transfer, entropy can also change. Okay, in that case the person is completely wrong. No, there is no chance. Okay, entropy transfer. Now what is the sense of transfer? Okay, अब मैंने कहा दोनों के बीच में कंपेयर मत कीजिए. ठीक है, इसको नहीं देखते एक बार. लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. मुझे सिस्टम की एंट्रोपी चेंज करनी है. कैसे करूं? आई कैन डू बाय 2 मेथड्स. लेट्स सपोज आई एम एडिंग हीट. ओके, हीट मैंने ऐड की, then obviously the entropy is going to be changed here. Or if you are rejecting heat, then the entropy is also going to be changed. Okay, adding or rejecting heat from the system will change the entropy of the system. वो change करेगी आपके पास में. Or let's suppose if I am mixing, that I am using 1 kg more air at same temperature 25 degree centigrade. ठीक है, if I am taking 1 kg more air the same temperature 25 degree centigrade, even though temperature is same आपके पास में, but I am doubling the mass. So in this case there is no heat transfer actually, but in this case there is a mass transfer. Okay, आपके पास में mass आपके साथ mix up कर रहा हूं, आपके पास में there is a mixer. So due to this mixing up the entropy is also going to be changed. ठीक है, entropy तब भी change होगी आपके पास में. Okay, तो ध्यान रखना आपके पास में. So entropy can be changed on or transfer only by the 2 modes, 2 methods, heat transfer and mass transfer. No other method is possible. इसका और कोई मेथड नहीं जिसके थ्रू आप एंट्रोपी सिस्टम की चेंज कर सके. ओके, तो ये बड़ा की पॉइंट था आपके पास में जो यहाँ पे समझना है. सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, देन व्हाट इज द सेंस? ओके, इवन दो यू कैन सी हियर, इवन दो आई एम कीपिंग द टेम्परेचर सेम, मैंने टेम्परेचर सेम रखा है, इन दैट केस इफ वी आर changing the mass of the system, in that case also the particle movement is going to be random and degree of that randomness is also going to be increased. ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए. लेट्स सपोज कि आपके मोबाइल फोन में 1000 सॉन्ग्स हैं. ठीक है, और लेट्स सपोज कि इनिशियली आपके पास में 100 सॉन्ग्स थे. सो आपने प्लेयर स्टार्ट किया और प्लेयर पे आपने क्या किया? रैंडम का बटन दबा दिया. ओके, कि और सफल कर दिया आपके पास में कि प्ले रैंडमली. ओके, तो वहां पे लेट्स सपोज कि
जो एक गाना है आपके पास में, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग आपके पास में, वो दोबारा आपके पास में है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट्स सपोज आपने बोला ए प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि एक सॉन्ग आपके पास में कुछ टाइम के बाद में वापस प्ले हो जाए सफलिंग के बाद में, देन द प्रोबेबिलिटी इज ए। ओके, लेट्स सपोज अब आपके पास में क्या हुआ कि अब आपके मोबाइल में आपने 1000 सॉन्ग्स डाल दिए। ओके, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपकी क्लियरिटी उस पर बन सके। सो लेट्स सपोज कि आपने 1000 सॉन्ग्स डाल दिए, अब आपने सफल किया, अब वही सॉन्ग आपके पास में कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, वापस रिपीट हो, उसके जो चांसेस हैं, ठीक है, वो आपके पास में बढ़ जाए, मतलब आपके जो उसके चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे कि वो एग्जैक्टली उतने टाइम के बाद में प्ले हो, बिकॉज इन दिस केस द सॉन्ग्स आर मोर। सो सफलिंग के बाद में आपके पास में चांसेस क्या हो गए आपके पास में सेम कि आपके बाद में कि वो रिपीट पे आए दोबारा आपके पास में, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। इट मींस इन दिस केस द रैंडमनेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज। रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है आपके पास में। सो दैट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, उस केस में क्या हो रही है? आपके पास में डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है उस केस में। दैट्स हाउ वी आर सेइंग द एंट्रोपी कीप्स इंक्रीजिंग। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मींस कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, सो इनिशियली व्हेन देयर इज अ पॉइंट, जब आपके पास में एक पॉइंट था एंड देयर इज अ बिग बैंग, सडनली बिग बैंग हुआ आपके पास में। सो बिग बैंग के होने के बाद में हम बोलते हैं कि ड्यू टू द बिग बैंग द एंट्रोपी विल बी चेंज, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी चेंज ऑब्वियसली, ठीक है। पहले एक पॉइंट था, ब्लास्ट हो गया, एंट्रोपी चेंज होगी। और लेट्स सपोज यू हैव एग, आपके पास में एक एग है, ओके, प्रॉपर्ली शेप्ड, आपके पास में नॉट क्रैक्ड एग, प्रॉपर एग आपके पास में, देयर इज एंट्रोपी। लेट्स सपोज कि आपने एग ड्रॉप किया, एग आपके पास में नीचे गिरा और टूट गया। टूटने के बाद जो उसका यॉक था आपके पास में फैल गया। तो द सेम मास in the egg or same yolk that is in the egg having a entropy A, but after the dropping down as the mass is going to be spreader, okay, in that case the entropy of that spreader mass is going to be changed or increased. So for that spreader egg जो आपके इसमें जो yolk आपके इसमें spreader हो गया है, okay, उसके जो आपके पास में जो entropy है that will be more than the mass in this one, okay, because now it is high class random, उसके अंदर क्या हो गया आपके इसमें? बढ़ गई। So means you have to understand the concept of entropy. अगर आप एंट्रोपी को हीट के बेस पे नहीं समझाना चाहते हैं, then you can understand the entropy based on the randomness. That is how random is the system, or what is the degree of randomness of the system. Okay, and if somehow you can change that degree of randomness, in that case, that will be the mode of changing, or that is the method of changing the entropy of the system. Okay, उसके थ्रू आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन क्लियरली ये राइट आप डेफिनेशन लिखते हैं, बट ये आपके माइंड में क्लियर चाहिए कि हमने क्या लिखा है। ऑल्सो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अरे ऑफ टाइम। ओके, ये एक बड़ी क्रूशियल सी डेफिनेशन आपके पास में। रोजर पेनरोज, आपने नाम सुना होगा आपके पास में, ठीक है, नोबेल प्राइज में उनको अभी मिला है आपके पास में। सो रोजर पेनरोज इज द साइंटिस्ट हु रोट ए बुक, ठीक है, उन्होंने बुक लिखी है द साइकिल्स ऑफ टाइम, ठीक है, द साइकिल्स ऑफ टाइम उन्होंने बुक लिखी, काफी अच्छी बुक है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, उस पर बेस्ड आपके पास बुक है। एंड ही डिफाइंड द होल यूनिवर्स बेस्ड ऑन दैट सेकंड लॉ एंड द एंट्रोपी। उसके बेस पर उन्होंने पूरे यूनिवर्स को डिफाइन किया। दैट इज हाउ कैन वी डिफाइन द होल यूनिवर्स ऑन बेस्ड ऑन दीज टू लॉज। इन दो लॉज के बेस पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको। ओके, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, यू कैन रीड दैट बुक ऑल्सो। सो इन दिस केस मैंने कहा एंट्रोपी डेफिनेशन और कई मेथड से दी जा सकती है, बिकॉज एवरीवेयर द एंट्रोपी इज इन्वॉल्व, बट फ्रॉम थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डिफाइन द एंट्रोपी लाइक दैट। Now, as I use a word that is entropy is the array of time. Okay, it means you can say what is the array? Array is the proper arrangement of something. Okay, you can say. So as the time will move forward, okay. So as the time will move forward, entropy will increase in that direction. Okay, as the time will move forward, the entropy will increase in that direction, or as the entropy keeps increasing, the time will also going to be forward. So you can say that is. This is how we can define the time also. Time को भी define करते हैं based on entropy. So there are so many things about the entropy. Okay, अभी तक हमने almost कुछ भी नहीं सीखा है. There are so many things. Okay, so I think ये जो conclusion निकाला for the reversible process, ds is equals to del q by t, and for the irreversible, r is here also r होना चाहिए. For the irreversible process, ds must be greater than del q by t. Okay, now हम इन दोनों के बीच में आपके इसमें difference क्या रहा है? So means change in entropy. अब यहाँ देखिए, in case of reversible process, जितनी भी हीट आपने सप्लाई की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इवन तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है, बिकॉज इन दिस केस वी कैन इंटीग्रेट दिस वन। ओके, सो इन दिस केस व्हेन यू आर सप्लाइंग द हीट ओवर सम टेम्परेचर हियर, देन द होल सिस्टम विल डिफाइन द एंट्रोपी, दैट इज दिस इज द वैल्यू। बट इन दिस केस द एंट्रोपी चेंज विल बी मोर देन द सप्लाई ऑफ हीट ओवर द टेम्परेचर। इसमें कुछ अलग होने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई आई विल यूज द थ्री टर्म्स हियर। ओके, आई विल से चेंज इन एंट्रोपी will be equals to transfer of
entropy plus generation of entropy. Okay, थोड़ा सा समझ के वर्ड यूज करना है आपको ये, क्योंकि एंट्रोपी में बड़ी क्रिटिकल सी चीज है आपके पास में. सो एक्चुअली आई एम सेइंग, ठीक है, जनरेशन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे दूं. मीन्स आई एम सेइंग द चेंज इन एंट्रोपी, ये जो चेंज आपके पास में ds, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू द ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी की एंट्रोपी ट्रांसफर कैसे की, लाइक इन दिस केस वी आर ट्रांसफरिंग द एंट्रोपी और वी आर चेंजिंग द एंट्रोपी इन द सिस्टम बाय यूजिंग द हीट ट्रांसफर. ओके, सो हमने बोला कि सिस्टम के अंदर जो टोटल एंट्रोपी चेंज हो रही है वो किसकी हो रही है, बाय द चेंज प्लस जनरेट कितनी हुई सिस्टम के अंदर जनरेट होगी. यस, द एंट्रोपी इज गोइंग टू जनरेट विद इन द सिस्टम, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है. लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे. सो द चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी, दैट इज दिस वन, प्लस जनरेशन ऑफ एंट्रोपी. ओके, ये जनरेशन की वजह से होगा. नाउ इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल सिस्टम है, इन दैट केस द जनरेशन विल बी जीरो. ओके, इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल, इफ वी कैन से for reversible generation of, वैसे मैंने आगे की चीज उठा लिया, आपके इसमें पिक कर लिया, बट यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, एंट्रोपी विल बी जीरो. ओके, सो फॉर रिवर्सिबल सिस्टम एक्चुअली द जनरेशन ऑफ एंट्रोपी विल बी जीरो, सो दिस टर्म बिकम्स जीरो. इट मीन्स द चेंज इन एंट्रोपी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी. ओके, चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू द transfer of entropy, जितनी entropy transfer हुई that will be exactly equal to the change. Okay, but for irreversible system, the generation of entropy will be positive. For irreversible system, generation of entropy will be positive. आप ये की पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि कभी कभार आपके एग्जाम में वन लाइन पूछा जाए. सो फॉर irreversible system, the generation of entropy will be positive, means this term will be positive, means within the system some entropy is going to be generated. तो आपने क्या किया, कुछ ट्रांसफर किया. ओके, देन प्लस देयर इज जनरेशन, सो कुछ ट्रांसफर हुआ प्लस जनरेशन हुआ. इट मीन्स इन दैट केस द चेंज इन एंट्रोपी will be more than the transfer. The change in entropy will be more than the transfer, and that more value will be exactly equal to generation of entropy. जो भी एक्स्ट्रा आपके पास में एंट्रोपी है, ओके, चेंज हुआ है, that is completed with the generation of entropy. ये कितनी एंट्रोपी जनरेट सिस्टम के अंदर होगी आपके पास में. ओके, सो ये यहां से क्लियर होना चाहिए. ये टर्म्स है, आगे बात की जाएगी इनकी कि आपके इसमें कैसे है डिपेंडेंसी. ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया यहां से आपके पास में. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, ठीक है. That is, as we defined, that is del Q by T, like this one, for any process that we defined here. Okay, for any process. Okay, so I can say for cycle, so I can say this is del Q by T. We are taking a cycle here. Okay, but now we know the entropy is a property. Okay, S is property, and for a property, so cyclic integral of the property will be zero, because for a property the change in the property is completely depending on the initial and final values. ठीक है, हमने प्रूव किया था एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, and for the change in entropy it's completely depending on the initial and final values. So if it is a cycle, so the initial and final points are same. So in that case, the cyclic integral of the entropy becomes zero here. Okay, and then again we will reach the Clausius inequality. Okay, means for reversible, del Q by T equals to 0. For irreversible, you can say del Q by T will be less than 0, that is negative. Okay, and del Q by T greater than 0 is impossible. Okay, तो यहां से हम ये भी देखते हैं दोबारा. Okay, so this is for any process and this is for the cycle here, and that's how we are defining this one. Okay, so I think अभी तक हमने जो भी बात की है
वो आपके माइंड में क्लियर होंगे. Okay, so next we will understand the entropy principle. Okay, so next we'll see entropy principle. Okay, so let's try to understand this. So we know for any process we know that is ds will be greater than equals to del q by t. Okay, ये हम किसी प्रोसेस के ले सकते हैं. But if we are considering some isolated system, okay, so when we are defining some system that is completely isolated, okay, completely isolated, this is our isolated system. So obviously in this case there is no energy exchange. No energy exchange will take place with other here. So as we are defining, that is, this is our isolated system. So obviously in this case there is no energy exchange. So we can say that is in this case the heat transfer, or you can say del Q will be equals to 0. So you can say for isolated system, okay, as no energy exchange will take place. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस केस में हमारे पास में जो हीट एक्सचेंज है, okay, that will become 0 here. So we can say for this one, this ds will be greater than equals to 0 here. Okay, this will be ds will be greater than equals to 0 here. So this we are saying for the isolated system. So we can say for reversible process, अगर सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है आपके पास में और जो आइसोलेटेड सिस्टम आपके कंप्लीटली रिवर्सिबल है, in that case you can say obviously we know that is change in entropy becomes 0 here. Okay, and for irreversible process ds will be greater than 0, not equals to greater than 0. So this we are defining for the isolated system कि isolated system के अंदर जो हो रहा है आपके पास में उसके बेस पर हमने डिफाइन किया. ओके, ऐसा नहीं कि किसी प्रोसेस के लिए, बिकॉज फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी अगर रैंडम प्रोसेस है, इन दैट केस लेट्स सपोज, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि द एंट्रोपी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द हीट एक्सचेंज, ठीक है. सो एंट्रोपी आपके चेंज, लेट्स सपोज इफ यू आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, okay, I'm not talking about the isolated, I'm simply talking about the system. You are supplying heat, so in that case the entropy change will be positive. Okay, entropy क्या सिस्टम को बढ़ जाएगी. So and if you are rejecting heat from the system, in that case the entropy change becomes negative. Okay, entropy change आपके इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा. Now somehow कि कुछ ऐसा हुआ आपके पास में कि जितनी हीट सप्लाई हुई एग्जैक्टली आपके पास में उतनी हीट रिजेक्ट हो गई, सब कुछ रिवर्सिबल है, इन दैट केस मे बी द एंट्रोपी चेंज विल बी 0. और यू कैन से फॉर एडियाबैटिक सिस्टम, कि आपके पास में सिस्टम एडियाबैटिक है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस एंड द सिस्टम इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, इन दैट केस द प्रोसेस कैन बी इन दैट केस द एंट्रोपी चेंज विल बी 0. सो फॉर प्रोसेस इट इज पॉसिबल कि हीट सप्लाई और रिजेक्शन के बेस में बचते हैं कि एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, हम इसकी बात कर रहे हैं. Okay, so for the isolated system, this will happen. So means I already told you that is isolated system can be defined as universe. Okay, universe. Okay, you can also define as universe. So the principle that we are defining here, ठीक है, जो principle हम define करें, so for that principle you can say that is the entropy change of universe will be greater than equals to 0. Okay, and obviously this universe will include both system and surrounding, क्योंकि isolated system हमने ब्लॉक कर रखा है तो इसके अंदर system और surrounding दोनों हो सकते हैं. So you can say this can also written as this is change of entropy of the system plus change of entropy of the
surrounding. We are both including. That's why we are saying this is universe here. So this can happen. Okay, ये आपके पास में होगा. So when I'm using the equals to sign, so ये आपको clear होना चाहिए कि in that case we are talking about the reversible. So means you can say there is a d of universe. वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बात करें d of universe will be equals to 0 for reversible system. अगर completely आपके पास में सब कुछ रिवर्स किया जाता है आपके पास में, in that case you can say. But we know our universe, जो हमारा यूनिवर्स है आपके पास में, that is highly irreversible system. वो आपके पास में बहुत ज्यादा irreversible आपके पास में. Okay, so the entropy principle state that is for isolated system entropy will keep increasing. एंट्रोपी आपके पास में हमेशा बढ़ती रहेगी. ओके, सो एक्चुअली दिस इज टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड और वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल यूनिवर्स हियर. सो इन दिस केस आई एम सेइंग फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द एंट्रोपी विल कीप इंक्रीजिंग, इंक्रीज करती रहेगी. और यू कैन से और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स will always be positive. ओके, कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होगी आपके पास में, पॉजिटिव होगी. सो दैट इज आवर एंट्रोपी प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये मैंने बात की आपके पास में रियल वर्ल्ड की, कि हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो मैंने आपको पूरी यूनिवर्स डिफाइन कर दिया. इट मीन्स जो हमारा यूनिवर्स है दैट इज ए रियल यूनिवर्स. ऑब्वियसली जब बिग बैंग हुआ आपके पास में तो उसके बाद से एंट्रोपी आपके पास में लगातार बढ़ रही है. इट्स कीप्स इंक्रीजिंग. ओके, एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है, ये पॉजिटिव थिंग है. मींस इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, इन दैट केस यू आर कंट्रीब्यूटिंग द एंट्रोपी इन द यूनिवर्स. आप कुछ ना कुछ आपके पास में यूनिवर्स में एंट्रोपी ऐड करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स इट्स सिंपली एडिंग अप सम एंट्रोपी इन द यूनिवर्स. वो कुछ ना कुछ आपके पास में एंट्रोपी ऐड होती जा रही है. सो इफ दिस विल कीप्स इंक्रीजिंग, अगर आपके पास में इंक्रीज होता रहेगा, ओके, इन दैट केस द टाइम विल मूव फॉरवर्ड. टाइम आपके पास में कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड आपके पास में मूव करता रहेगा. ओके, सो दैट इज हैपनिंग इन दिस केस. एंड आपने सुना भी होगा, आई थिंक दैट इज आवर यूनिवर्स इज नॉट इवनली एक्सपेंडिंग बट ऑल्सो एक्सेलरेटिंग. मीन्स ऐसे नहीं कि आपके पास बिग बैंग के बाद में सिर्फ एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो एक्चुअली आपके पास में एक्सेलरेट भी कर रही है. ठीक है, कि इसके बढ़ने की जो रेट है दैट इज कीप्स एक्सेलरेटिंग. वो आपके पास में एक्सेलरेट हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है आपके पास में. इट मींस जैसे जैसे आपके पास में रैंडमनेस आपके पास में इन्वॉल्व होती रहेगी, ठीक है, एंट्रोपी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती रहेगी, आपके पास में सिस्टम बढ़ता रहेगा और इट विल कीप एक्सेलरेटिंग, कीप एक्सपेंडिंग, ये बढ़ता रहेगा आपके पास में. ओके, सो देयर आर सो मेनी थ्योरीज जिन पे आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से हम यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं. सो एज वी आर सेइंग दैट टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड, टाइम आगे बढ़ रहा है बिकॉज द एंट्रोपी कीप्स इंक्रीजिंग, क्योंकि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है. एंट्रोपी बढ़ रही है इसलिए टाइम बढ़ रहा है आपके पास. दैट्स व्हाई डिफाइंड दैट इज एंट्रोपी इज आल्सो द अरे ऑफ टाइम. ठीक है, ये टाइम का एक एलिमेंट आपके पास में जो हमें शो होता है आपके पास में. सो मेरे दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं इस रिगार्डिंग. ठीक है, कि एंट्रोपी, व्हाट इफ द एंट्रोपी बिकम्स नेगेटिव, ऐसा क्या हो कि एंट्रोपी यूनिवर्स के नेगेटिव हो जाए और जीरो हो जाए. चलिए, तो पहले बात, अगर मैं, दिस इज माय थ्योरी. ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास में ये चीजें ऐसी हो सकती हैं, बट दिस इज माय थ्योरी. हम ह्यूमन बीइंग्स का काम है सोचना कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो. सो बेस्ड ऑन माय थ्योरी, सो आई एम सेइंग लेट्स सपोज व्हाट इफ द यूनिवर्स एंट्रोपी बिकम्स जीरो. मींस अभी तक क्या हो रही है आपके पास में, इंक्रीज कर रही है. मे बी सम मैक्सिमम पॉइंट ऑकर हियर. ओके, कि एंट्रोपी का कुछ मैक्सिमम पॉइंट आ जाए आपके पास में. ओके, वहां पे इसका अभी आपके पास में क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है आपके पास में, बढ़ रही है. सडनली इस पॉइंट पे आके मैक्स हो जाए. ओके, सो द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बिकम मैक्स. ये मैक्स पे पहुंच गए. इट मींस अब आपके उसकी एक वैल्यू है, बट हियर एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज. जब हम किसकी बात करें, चेंज की. मींस नाउ आई एम सेइंग द चेंज बिकम जीरो, कि जितनी एंट्रोपी पहुंचनी चाहिए थी उतनी पहुंच गई, अब जीरो हो गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि टाइम के साथ में क्या होगा. ठीक है, बिकॉज वी आर सेइंग द टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड because the entropy keeps increasing. So entropy अगर अपने पॉइंट पे आ गई, आपके पास में मैक्स पहुंच गई, so टाइम क्या होगा, so टाइम क्या रुक जाएगा आपके पास में, क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास में. और if the rate of increment of the entropy keeps increasing, okay, and this rate is accelerating, अगर ये एक्सेलरेट हुई,
सो व्हाट यू थिंक अबाउट द टाइम, कि टाइम के साथ में क्या होगा, टाइम विल एक्सेलरेट और डिसेलरेट, क्या होना चाहिए आपके पास। ओके, सो ये चीज आपके पास में आप बेस्ड ऑन एंट्रोपी मींस, इवन दो मैं कई बार बोलता हूं कि इफ यू अंडरस्टैंड द एंट्रोपी, अगर आप एंट्रोपी को समझते हैं, इन दैट कैन यू कैन आल्सो से दैट इज कि गॉड कहाँ है, भगवान कहाँ बैठा है, बिकॉज आप समझ सकते हैं दैट इज कि हाउ द हाई क्लास रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस कितनी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, कितना रैंडम आपके पास में सिस्टम हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके दे सकते हैं इसमें, लेट्स सपोज देयर इज अ टेबल, हम एक बात करते हैं यहाँ पे, एक टेबल हमारे पास में, लेट्स सपोज दिस टेबल हाइट इज 10 मीटर, मैंने मान लिया 10 मीटर है, ओके, एंड दिस इज आवर ग्राउंड हियर, यहाँ ग्राउंड है हमारे पास में, लेट्स सपोज देयर इज एन एग, एक एग हमारे पास में यहाँ पे, ओके, लेट्स सपोज ये एग हमारे पास में जो है इसकी एंट्रोपी है ए, और एग यहां से गिरा आपके पास में और यहां आपके पास में टूट गया, लेट्स सपोज कि टूटने के बाद में इसकी एंट्रोपी हो गई बी, सो ऑब्वियसली आई कैन से दैट इज, क्योंकि अभी आपके पास में ज्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, सो यू कैन से द एंट्रोपी ऑफ द बी विल बी मोर देन द एंट्रोपी ऑफ ए, इसकी जो एंट्रोपी है वो इससे ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहां पे एंट्रोपी वो क्या है, ज्यादा है। अब लेट्स सपोज कीजिए कि इसको आपने किसी कैमरे के थ्रू शूट किया, ठीक है, कि एग आपके पास में गिरा और टूट गया, लेट्स सपोज इसने आपके पास में 10 सेकंड लिए गिर के टूटने में, इट टेक 10 सेकंड, ठीक है, आपने इसको रिकॉर्ड किया, अब आपने क्या किया, फिल्म को रिवर्स चलाया, तो एग यहां से आपके पास में जुड़ा, ऊपर उठा और यहां पहुंच गया, ओके, तो आपने क्या किया, हर एक प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, कंप्लीटली रिवर्स, एवरी स्टेप, जो भी स्टेप यहां पे होने वाली थी, ठीक है, उस हर एक स्टेप को आपने रिवर्स करके वापस पहुंचा दिया। सो अगेन वी आर हैविंग एग, अब हमारे पास में दोबारा एग है, बट इस टाइम मैंने क्या किया, इसको हल्का सा पुश किया, थोड़ा धक्का दिया आपके पास में, अगेन ये गिरता है आपके पास में और टूट जाता है, सो ऑब्वियसली आई पुश दिस वन, सो अभी जो स्कैटरिंग होगी ये ज्यादा लार्ज एरिया में होगी, क्योंकि मैं इसको पुश किया, ऑब्वियसली इसका जो टाइम है गिरने का वो कम हो जाएगा, लेट्स सपोज कि 5 सेकंड में गिर के टूटा, ओके, और टूटने के बाद में इसकी एंट्रोपी पहुंची बी डैश, क्योंकि मैंने इसको पुश किया, सो ऑब्वियसली द एस बी डैश विल बी मोर देन द एस बी, क्योंकि इस केस में स्कैटरिंग कम थी, इसमें ज्यादा हुई आपके पास में, ओके, ज्यादा एरिया में फैला, ओके, लेट रिवर्स द फिल्म हियर, दोबारा यहाँ पे पहुंच गया, अब मैंने कुछ ज्यादा फोर्स यूज किया और ज्यादा, ओके, लेट्स सपोज कि अभी 1 सेकंड में गिर के टूट गया, ठीक है, अब स्कैटरिंग और ज्यादा हुई, आपके और ज्यादा एरिया में फैल गया आपके पास में, लेट्स सपोज आई एम सेइंग इन दैट केस द एंट्रोपी बिकम बी डबल डैश, so obviously I can say that is SB double dash will be more than SB dash than SB than SA. Okay, what if the egg is taking 0 second, okay, the egg is taking 0 second, कि ये 0 सेकंड में आपके गिरा और टूट गया, ठीक है, so in that case I'm saying the entropy B triple prime or triple dash जब यूज करें आपके इसमें, so if it's taking 0 second then what will be the entropy of this one, इस टाइम पे इसकी एंट्रोपी इंक्रीज कितनी होगी, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मैक्स, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपके पास में, ओके, सो इन दैट केस द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो कितनी हो सकती है, सो कैन आई यूज द वर्ड इन्फिनिटी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बिकॉज इट्स टेकिंग 0 टाइम, आप जरा सोच के देखिए व्हाट इज 0 टाइम, ठीक है, कि आपने सोचा भी नहीं होगा उससे पहले गिर के टूट चुका है आपके पास में, ओके, इवन दो आपने कैमरा को आपके पास में हाई फ्रेम में चला के और बहुत स्लो मोशन में उसको देखा, बट इवन दो यू कांट सी दैट वन, कि कब गिरा और कब टूटा, आपने देखा यहां था और आपने उसी टाइम देखा कि एग यहां पर भी है, ओके, सो मींस एट द सेम टाइम एग इज हियर एंड हियर, यहां आपके पूरा एग रखा हो, यहां पे आपके पूरा एग आपके टूट चुका है, ओके, सो इन 0 सेकंड, सो यू कैन से इन दैट केस द एंट्रोपी बिकम द इन्फिनिटी, इफ लेट आई एम सेइंग, ओके, इन फाइंड व्हाट हम यूज करते हैं, व्हाट इज द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी द मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर यू कैन सी, ओके, सो हमने बोला कि आपके पास में ये इन्फिनिट होगी, व्हाट इफ egg is taking infinite time to crack, means अब जो एग है वो इन्फिनाइट टाइम ले रहा है आपके पास में, ठीक है, मींस आप देख रहे हैं, आपने शूट करना स्टार्ट किया, एग आपके पास में गिर रहा है, गिरना शुरू हुआ, ठीक है, आपकी लाइफ स्पेन चलेगी, आपके बच्चों की लाइफ चलेगी, ठीक है, पूरी ह्यूमन रेस आपके पास में चलेगी, उसके बाद में अर्थ भी खत्म हो गई, ठीक है, उसके बाद में तब भी एग गिर रहा है कंटिन्यूअसली, egg keeps falling because it's taking infinite time, okay, infinite time अगर आपके पास मिलेगा, so and that is take the 0 second to crack down here, ठीक है, टूटने के लिए इसने 0 सेकंड लिया, in this case the infinity become the very high, but if it's taking infinite time in that case the entropy change becomes 0, उस केस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में एंट्रोपी चेंज नहीं होना, बिकॉज इट्स टेकिंग इनफिनाइट टाइम, सो मींस दैट्स व्हाई, इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस यूनिवर्स का जो टाइम है वो ना ही तो 0 आपके पास में और ना ही इनफिनाइट है, इट्स सम फाइनाइट टाइम,
Okay, it means if it's having a finite time, in that case definitely the entropy will also have the finite value. ठीक है, इसीलिए चीजें हमें दिखाई देती है आपके पास में, ठीक है, कि हाँ चीजें कुछ हो रही है, इट्स टाइम इज मूविंग. ओके, सो जो एंट्रोपी चेंज हो रही है पॉजिटिव आपके पास में एंट्रोपी रेट मींस द टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो मींस एंट्रोपी की रेट अगर आपके पास में स्लो या फास्ट होती है तो डेफिनेटली इट विल आल्सो अफेक्ट द टाइम. क्या लगता है, टाइम को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी? ओके, डेफिनेटली आपके पास में हो सकता है कि टाइम को भी अफेक्ट करे. सो आप अगर एंट्रोपी को सोचेंगे तो आप अपनी एक नई थ्योरी आपके सामने बना सकते हैं जिसके थ्रू आप चीजों को और बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंट्रोपी प्रिंसिपल इज आल्सो क्लियर and we are defining the entropy of the universe will always be greater than equals to 0. It will be equals to 0 in case of the reversible system, okay, and greater than 0 in case of irreversible system that we are defining here. But how in thermodynamics we are defining universe or isolated system? इसको भी एक बार देख लेते हैं. Okay, so let's take take an example here. एक example लेते हैं. So in that example I am considering a heat engine. ठीक है, heat engine ले रहे हैं. Okay, so I'm saying there is some source here. ठीक है, एक source हमारे पास में. The source temperature is Ts. Source का temperature Ts आपके पास में. There is an engine. Okay, एक engine हमारे पास में. Let's suppose we are receiving heat QH here, rejecting heat QL at some sink temperature TL. So TL is the sink. Okay, now I want to write down the entropy equation for this one. मैं इसके लिए entropy equation लिखने की ट्राई कर रहा हूँ. So obviously in this case, first of all I will write, ठीक है, मैं इसके लिए लिखूंगा किसके लिए, source, because from the source the heat is going to be rejected. यहाँ से heat reject हो रही है. Okay, so मैंने बोला the entropy change of the source, okay, plus then engine के पास में कुछ रिसीव हो रही है, कुछ रिजेक्ट हो रही है, तो इंजन की भी अपने आप में क्या होगी, एक एंट्रोपी चेंज होगी. सो आई विल राइट द एंट्रोपी चेंज ऑफ इंजन. देन हीट रिजेक्ट हो रही है किस पे, सिंक पे. देन आई विल राइट प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिंक. ओके, ये टोटल आपके पास में मैंने आप लिख लिया. सो इन दिस केस आई थिंक सोर्स और सिंक मैंने दोनों इंक्लूड किए हैं. सो दिस इज अवर सिस्टम, ये सिस्टम हमारे पास में, एंड दिस इज द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है इसकी. सो एक्चुअली वी इंक्लूडेड द होल टर्म, इसमें हमने सारी चीजें इंक्लूड कर लिया है. ओके, इसके बाहर क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है. ओके, इन दिस केस इसके बाहर क्या हो रहा है इससे में कोई मतलब नहीं है. सो एक्चुअली व्हेन वी आर इंक्लूडिंग बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, व्हेन वी आर इंक्लूडिंग बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दैट केस वी आर सेइंग दैट इज आवर यूनिवर्स. ओके, सो इन दिस केस दिस यूनिवर्स बिकम यूनिवर्स ऑफ सोर्स, engine plus sink. Okay, that become our universe. And again I will write for the universe, that is the entropy of the universe will be greater than equals to 0. Then I will write this one. So in thermodynamics when you including both system and surrounding, ठीक है, जैसे आप system और surrounding दोनों को include कर लेंगे, then whole combined system you will define the universe. Okay, so if you are getting some positive value of entropy, ठीक है, आपने सब कुछ इंक्लूड कर लिया और आपको उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, इन दैट केस यू कैन से यस दैट इज वैलिड, कि ये होगा, बिकॉज इट विल बी पॉजिटिव, कि ये होना चाहिए आपके पास में. इफ यू आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द होल सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के आपके पास में नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इट मींस दैट कांट बी हैपन, वो आपके पास में नहीं हो सकता, बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कांट बी नेगेटिव. ठीक है, वो आपके पास में नेगेटिव नहीं हो सकती. इन द एक्सट्रीम केस it will be 0 if the system and surrounding both are highly reversible. दोनों के दोनों आपके इसमें क्या है, बहुत highly reversible system है, तब आपके पास में वो possibilities हो सकते हैं, otherwise ऐसा कुछ नहीं होने वाला. Okay, so these two terms are valid for the universe, but the third, that is negative value, is not valid. Okay, इस पे कुछ examples देखेंगे हम लोग, तो आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी. Okay, so I think यहाँ तक ये क्लियर है.